Hello dear children, I extend a very warm welcome to all of you in my maths video class. I am sure children you all are doing good, you all are happy, healthy and safe in your homes. Do take very good care of yourself children, stay happy, stay healthy and stay safe. You must follow all the safety precautions, you must listen to your parents, eat healthy food, eat lot of green vegetables, eat lot of fresh fruits which are rich in vitamin C. Don't forget to put on your mask whenever you step out of your home, and drink, most importantly, drink lot of fluid. Drink lot of water but not cold, fresh का पानी नहीं, ठीक है? Drink lot of water, juice पियो, liquid चीजें, okay? And keep yourself healthy and keep yourself safe. We are doing chapter number 1 children, pre-number concepts part 1. Part 1 in the sense कि पहले अभी हम कुछ pre-number concepts जो हैं, कुछ उनमें से हम अभी पढ़ेंगे and some of the concepts we will learn later. बीच में कुछ और lessons पढ़ने के बाद जो rest of the concepts हैं उनको हम बाद में पढ़ेंगे. Okay, so this is part 1 and part 2 we will learn later. In this lesson, what all have we learned till now? अभी तक हमने कौन से concepts पढ़े, किस किस relation के बारे में पढ़ा? We discussed about big and small. Big and small मतलब बड़ा या छोटा, बड़ा किसे बोलते हैं, छोटा किसे बोलते हैं, ठीक है ना? Big, that is size. Big and small they refer to size. Okay? उसके बाद हमने big and small में ही we discussed about bigger and smaller, and then we discussed about biggest and smallest. ठीक है? Bigger and smaller, that is when we compare the size, and biggest and smallest when we talk of the size which is the biggest, सबसे बड़ा क्या है in a group. ठीक है? तो ये तो size है biggest and smallest. Big, small, these words refer to size. उसके बाद फिर हमने क्या पढ़ा? उसके बाद हमने पढ़ा top, bottom and on and under. Top, bottom and on, under. ये बताया मैंने. These are all known as spatial relationships. Spatial मतलब they tell us the concept of where the objects are in relation to some other object. ठीक है? जैसे कोई टेबल पे कोई चीज टेबल के ऊपर है, कोई चीज टेबल के नीचे है. टॉप बॉटम पढ़ा हमने, ऑन एंड अंडर पढ़ा. ओके, नाउ टुडे वी विल डू इनसाइड आउटसाइड. ओके, आज हम करेंगे इनसाइड एंड आउटसाइड. INSIDE, inside, OUTSIDE, inside, outside. Inside, outside. Inside मतलब किसी चीज किसी के अंदर, and outside means बाहर. Okay? So this topic, that is inside, outside, this gives us the special relationship of two objects की स्पेशल रिलेशनशिप, मतलब उनकी रिगार्डिंग टू देयर प्लेस कि कौन सी चीज अंदर है, कौन सी चीज बाहर है. स्पेशल रिलेशनशिप जैसे टॉप एंड बॉटम भी है, ऊपर है, नीचे है, तो सिमिलरली यहाँ पर हम पढ़ेंगे अबाउट इनसाइड एंड आउटसाइड, कि क्या अंदर है और क्या बाहर है. ओके, सो जैसे इनसाइड आउटसाइड, वेयर डू यू लिव, घर पे कहाँ रहते हो, घर के अंदर या बाहर. जैसे आप इंडोर गेम्स एंड आउटडोर गेम्स बोलते हैं, तो हम घर के अंदर रहते हैं या घर के बाहर. ठीक है? तो इनसाइड द हाउस, आउटसाइड द हाउस. क्लासरूम है आपका, क्लासरूम के अंदर अब जब व्हेन यू आर इनसाइड द क्लासरूम, व्हाट डू? यू स्टडी, you learn how to read, how to write, and besides that you learn various other things. You learn moral stories, you learn moral values, you listen to stories. बहुत सारी चीजें देखते हैं.
एंड व्हेन यू आर आउटसाइड द क्लासरूम, रिसेस होती है, गेम्स पीरियड है, पीटी पीरियड है, डांस पीरियड है, यू आर आउटसाइड द क्लासरूम। क्लासरूम से आप बाहर रहते हो, बाहर खेलते हो, ठीक है ना, रिसेस टाइम पे बाहर बैठ के अपना टिफिन खाते हो, बाहर खेलते हो, सो दैट इज आउटसाइड। कोई भी आप स्कूल कैंपस में आते हो तो वी से इनसाइड द स्कूल कैंपस, मतलब स्कूल कैंपस के अंदर। इनसाइड मीन्स अंदर, आउटसाइड मीन्स बाहर। एनीथिंग कैन बी इधर इनसाइड और आउटसाइड। जैसे कोई भी चीज है इधर, जैसे टॉप बॉटम हमने पढ़ा, तो इधर इट कैन बी ऑन टॉप और इट कैन बी एट द बॉटम। इट कैन नॉट बी एट बोथ द प्लेसेस एट द सेम टाइम। द बर्ड इज सिटिंग ऑन द टॉप ब्रांच ऑफ द ट्री। तो अगर बर्ड टॉप ब्रांच पे है, बर्ड कैन नॉट बी एट द बॉटम। बर्ड बॉटम पे नहीं हो सकती है। देयर इज अ काउ एट द बॉटम ऑफ द ट्री। तो अभी काउ है यहाँ पे, तो काउ ऊपर नहीं हो सकती है, ठीक है। सो बुक इज ऑन द टेबल। सो इफ द बुक इज ऑन द टेबल देन इट कैन नॉट बी अंडर द टेबल। तब बुक जो है वो टेबल के नीचे नहीं हो सकती है। द सीपीयू इज अंडर द टेबल। सीपीयू अभी अगर टेबल के नीचे है तो सीपीयू कैन नॉट बी ऑन द टेबल। टेबल के ऊपर सीपीयू नहीं जा सकता है, ठीक है ना। सो एनीथिंग कैन बी एट वन प्लेस एट अ टाइम। हर जगह, दोनों जगह नहीं हो सकती। तो दिस इज द रिलेशनशिप कि अगर कोई चीज अंदर है, वी आर टॉकिंग अबाउट टू थिंग्स। जैसे हमने पढ़ा टॉप एंड बॉटम में, एग्जाम्पल्स में देखा हमने कैट एंड डॉग। रूफ है तो रूफ के ऊपर या रूफ के नीचे। तो रूफ के ऊपर क्या है, कैट है, और रूफ के नीचे क्या है, डॉग है। सो इफ द कैट इज ऑन द रूफ then it cannot be under the roof, and if the dog is under the roof then it cannot be on the roof, ठीक है ना। अगर कैट जो है वो रूफ के ऊपर है तो वो नीचे नहीं आ सकती है, नीचे नहीं हो सकती है। और अगर नीचे डॉग है तो डॉग नीचे ही होगा। डॉग कैन नॉट बी ऑन द रूफ। डॉग रूफ के ऊपर नहीं आ सकता है, ओके। सो व्हेन वी टॉक ऑफ टू थिंग्स, इट cannot be at both the places at the same time. It will be either on top or at the bottom, or it can be on something or under something, ठीक है। तो similarly when we talk of inside or outside, so it will be either inside or outside. आप जैसे you can be, if you are inside the classroom then you cannot be outside the classroom, or if you are outside the classroom then you cannot be inside the classroom. You cannot be at both the places at the same time. आप दोनों जगह पे एक टाइम पे नहीं हो सकते हो, इनसाइड आउटसाइड दोनों नहीं हो सकते। टुडे वी विल सी इनसाइड एंड आउटसाइड, ठीक है। इनसाइड मतलब अंदर, आउटसाइड माने बाहर। सपोज दिस इज अ नेस्ट, ठीक है, ये नेस्ट है। सपोज बर्ड का नेस्ट है, जैसे बर्ड का जैसे करके नेस्ट बनाते हैं ना, ऐसे। दिस इज द नेस्ट ऑफ द बर्ड एंड देयर आर 1 2 3 4 eggs inside the nest. नेस्ट के अंदर क्या है, नेस्ट के अंदर 4 eggs हैं। देयर आर 4 eggs inside the nest. तो नेस्ट अभी कहाँ है, दे आर इनसाइड, नेस्ट के अंदर। एंड वेयर इज द बर्ड सिटिंग, आपने देखा होगा कि कभी भी जब when any bird when it lays eggs, जब वो एग्स देती है तो किसी भी ब्रांच में, किसी भी ट्री पे जहाँ पे भी अपना नेस्ट बनाती है, तो इट इज ऑलवेज आउटसाइड द नेस्ट वॉचिंग द एग्स। बर्ड जो है वो हमेशा नेस्ट के बाहर रहती है एंड बहुत वॉचफुल रहती है, पूरे टाइम एग्स को वॉच करती रहती है कि कोई उनके एग्स को हार्म ना पहुंचाए, ठीक है। सो सपोज दिस इज अ ट्री के ऊपर ये नेस्ट है, सो एंड द एग्स आर इनसाइड द नेस्ट। एग्स कहाँ है, एग्स आर इनसाइड द नेस्ट एंड द बर्ड इज आउटसाइड द नेस्ट। बर्ड कहाँ है, नेस्ट के बाहर है, ठीक है। सो आई होप इनसाइड आउटसाइड समझ में आया, इनसाइड या आउटसाइड। इन माने अंदर, आउट माने बाहर।
इनसाइड, आउटसाइड, इंडोर, आउटडोर, जैसे इंडोर गेम्स, आउटडोर गेम्स मैंने बताया था। तो इंडोर मीन्स द गेम्स विच आर प्लेड इनसाइड द होम एंड आउटडोर गेम्स आर द गेम्स विच आर प्लेड आउटसाइड द होम। ठीक है, सो नाउ वी विल डू द एक्सरसाइज। अगेन I cannot make the drawings तो मैं नहीं बना पाऊंगी। तो 6 pictures are there. You have to take the object inside and cross the object outside. जो चीज अंदर है उसको आपको टिक करना है एंड जो चीज बाहर है उसे आपको क्रॉस करना है। ओके, सो अगेन दिस लेसन गिव्स द स्पेशल रिलेशनशिप ऑफ टू ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स मीन्स एनीथिंग, कोई भी चीज हो सकती है। एनीथिंग, एनी एनिमल, एनी बर्ड, एनी ट्री। ऑब्जेक्ट मतलब कुछ भी हो सकता है, कोई भी चीज। ओके, सो नाउ लेट अस डू द एक्सरसाइज। Take the inside object, take the inside object and cross, C-R-O-S-S, cross the outside object. Take the inside object and cross the outside object. मतलब जो भी चीज अंदर है, inside any given thing, जैसे क्लासरूम है तो there are some children inside the classroom, some children outside the classroom. The teacher is inside the classroom, the children are outside the classroom. ठीक है, किसी भी चीज के अंदर। There are 3 apples inside the basket, 4 apples outside the basket. 3 apples है, बास्केट के अंदर है एंड 4 एप्पल्स बास्केट के बाहर है। देयर आर सम वेजिटेबल्स इनसाइड द बास्केट, सम वेजिटेबल्स आउटसाइड द बास्केट। ओके, so first is in the first picture you can see a lion. This is the first picture. Okay, in this first picture you can see a lion. Lion जिसको कि हम बाघ बोलते हैं। टाइगर इज शेर, ए लायन जिसको कि हम बब्बर शेर बोलते हैं। ठीक है, बड़े बड़े जिसके मेन होते हैं दैट इज लायन। सो यू कैन सी अ लायन इनसाइड द केज। एक केज दिख रहा है, केज मतलब पिंजरा। तो लायन जो है वो पिंजरे के अंदर है एंड वेयर इज द गर्ल? द गर्ल इज आउटसाइड द केज। फर्स्ट पिक्चर है, there is a lion inside the cage. There is a lion inside the cage and a girl outside the cage. ठीक है, केज के अंदर क्या है? लायन, और केज के बाहर क्या है? गर्ल। सो लायन इनसाइड द केज एंड अ गर्ल आउटसाइड द केज। ओके, सो वी हैव टू पुट द टिक ऑन द इनसाइड ऑब्जेक्ट। इनसाइड ऑब्जेक्ट क्या है? इनसाइड ऑब्जेक्ट इज द लायन, सो वी विल पुट अ टिक ऑन लायन। एंड व्हाट इज द आउटसाइड ऑब्जेक्ट? Outside object is the girl, so we will put a cross on the girl. ठीक है, inside object is lion, so we will put a tick, and outside object is the girl, so we will put a cross. Okay, now in the second picture what do you see? Second picture में क्या आप देख रहे हो? एक टेंट दिख रहा है। टेंट यू ऑल नो, जैसे जो टेम्पररी हाउस जैसे बनाते हैं लोग जब ट्रैवलिंग, पहले ट्रैवलिंग करते थे या अभी भी जैसे लोग एडवेंचर स्पोर्ट्स वगैरह पे जाते हैं और ऐसी जगह पे जहाँ पे रहने के लिए पक्के हाउसेस नहीं होते, तो वहाँ पे फॉर 2 or 3 days अगर रहना होता है तो पीपल पुट अप टेंट्स, टेंट लगाते हैं, उसके अंदर रहते हैं। ठीक
ठीक है, इसको टेंट हाउस बोलते हैं। अभी जब मैं ईवीएस में डिफरेंट टाइप ऑफ हाउसेस के बारे में मैं बताऊंगी, तब टेंट के बारे में बताऊंगी। यू कैन सी अ टेंट, ठीक है। टेंट के अंदर अ मैन इज सिटिंग, दिस पिक्चर, ये वाली जो पिक्चर है इसमें आप देख सकते हो, यू कैन सी दैट अ मैन इज सिटिंग इनसाइड द टेंट एंड ही हैज टाइड हिज कैमल आउटसाइड द टेंट। जैसे बहुत बहुत पहले टाइम पे जब लोग ट्रैवल करते थे, व्हेन पीपल यूज्ड टू ट्रैवल, तब इतने व्हीकल्स होते नहीं थे, तो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ऑन एनिमल्स ओनली, जैसे हॉर्स है, कैमल है। एंड इफ वन हैड टू ट्रैवल इन डेजर्ट, अगर जहाँ पे बालू पूरा होता था, रेगिस्तान में ट्रैवल करना होता था, तो पीपल यूज्ड टू ट्रैवल ऑन कैमल ओनली। एंड स्टिल अभी भी जो रेगिस्तान वाला पूरा एरिया है, जैसे इधर राजस्थान जहाँ पे बहुत डेजर्ट है, वहाँ पे अभी भी लोग कैमल पे ट्रैवल करते हैं, बिकॉज अदर एनिमल्स कैन नॉट वॉक इन सैंड। डेजर्ट मतलब रेगिस्तान मतलब जहाँ बहुत बालू होती है, तो वहाँ पे दूसरे जो एनिमल्स होते हैं वो उनके लिए वॉक करना बहुत मुश्किल होता है। एंड कैमल इज नोन एज शिप ऑफ द डेजर्ट। कैमल के जो फीट होते हैं उनका कंस्ट्रक्शन ऐसा होता है, दे आर पैडेड एंड कैमल्स कैन वॉक इजीली इन द सैंड। तो मे बी दिस मैन इज ट्रैवलिंग इन डेजर्ट, वो कहीं डेजर्ट में, कहीं रेगिस्तान में ट्रैवल कर रहा है, तो रात में ही इज स्टेइंग समवेयर, so he has tied his camel outside the tent, ठीक है। So the man is sitting inside, the man is sitting inside the tent and his camel is tied outside, ठीक है। मैन है वो टेंट के अंदर बैठा हुआ है और उसका जो कैमल है वो टेंट के बाहर बांधा हुआ है उसने, ओके। सो व्हाट इज द ऑब्जेक्ट इनसाइड? द इनसाइड ऑब्जेक्ट इज द मैन, मतलब टेंट के अंदर एक ऑब्जेक्ट है एंड one object is outside the tent. There are two objects, man and the camel. One object is inside the tent and one object is outside the tent. So which object is inside the tent? The man is inside the tent and उसका camel जो है, that is the second object, that is outside the tent. So we will put a tick on man and we will put a cross on camel. Man पे हम tick लगाएंगे and camel पे हम क्रॉस लगाएंगे, बिकॉज कैमल इज आउटसाइड, क्रॉस द आउटसाइड ऑब्जेक्ट, ओके। मैं इसको अभी इरेज कर दूं। नाउ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड वन इज, थर्ड इज, दिस इज द थर्ड पिक्चर, ओके, दिस इज द थर्ड पिक्चर। व्हाट डू वी सी इन दिस पिक्चर? इस पिक्चर में हमें क्या क्या दिख रहा है? वी कैन सी अ रूम सॉर्ट ऑफ समथिंग, एक हमें रूम जैसा दिख रहा है जिसके अंदर एक कार खड़ी हुई है, ठीक है। एक रूम जैसा दिख रहा है जिसके अंदर एक कार खड़ी हुई है। सो व्हाट इज द प्लेस कॉल्ड? जहाँ पे व्हीकल्स को पार्क करते हैं, जहाँ पे व्हीकल्स खड़ी करते हैं, उस प्लेस को क्या बोलते हैं? दैट इज नोन एज गैरेज, है ना। गैरेज बोलते हैं जहाँ पे हम अपने व्हीकल्स को पार्क करते हैं। सो वी कैन सी अ कार इनसाइड द गैरेज। गैरेज के अंदर हमको एक कार दिखाई पड़ रही है। एंड व्हाट डू वी सी आउटसाइड द गैरेज? गैरेज के बाहर हमें क्या दिख रहा है? गैरेज के बाहर वी कैन सी अ मैन, ठीक है। एक हमको गैरेज के बाहर एक आदमी दिखाई पड़ रहा है। मे बी ही हैज क्लीन द कार, अपनी उसने व्हीकल साफ किया, अपनी कार साफ करके वो बाहर आ रहा है शायद, ठीक है। सो वी कैन सी अ कार इनसाइड द गैरेज एंड अ मैन आउटसाइड द गैरेज। सो इन द थर्ड पिक्चर there is a car inside, there is a car inside the garage, GARAGE, there is a car inside
inside the garage and a man outside the garage. Okay, so there are two objects, car and the man. ठीक है, of course human beings को हम कोई चीज नहीं बोलते हैं, ठीक है, बट हियर यहाँ पे जस्ट एक्सरसाइज हम कर रहे हैं. तो there are two objects, one is inside the garage and one is outside the garage. So which object is inside the garage? There is a car inside the garage. So inside object is the car, and what is the outside object? The outside object is the man. The outside object is the man. So where do we put the tick? We will put a tick on car and cross on man, because car is inside the garage and man is outside the garage. ठीक है, two objects are there, man and the car. Man is outside the garage, car is inside the garage. We can say it in both ways. जैसे हमने बोला कि there is a lion inside the cage and a girl is outside the cage. We can also say there is a girl outside the cage and a lion inside the cage. दोनों का मतलब सेम है. There is a man inside the tent and his camel is tied outside the tent. Or we can say the camel is tied outside the tent and a man is sitting inside the tent. मतलब कैमल को उसने बाहर बांध रखा है और वो टेंट के अंदर बैठा है. थर्ड इज देयर इज अ कार इनसाइड द गैरेज एंड अ मैन आउटसाइड द गैरेज, और वी कैन से देयर इज अ मैन आउटसाइड द गैरेज एंड अ कार इनसाइड द गैरेज. नाउ सी द फोर्थ पिक्चर. इन द फोर्थ पिक्चर व्हाट डू यू सी? फोर्थ पिक्चर में हमें क्या दिख रहा है? इन द फोर्थ पिक्चर वी कैन सी अ केज, जो पिंजड़ा होता है ना, जिसे जो बर्ड्स को रखते हैं, बर्ड्स को पिंजरे के अंदर रखते हैं. तो वी कैन सी अ केज. केज के अंदर क्या दिख रहा है? पैरट. पैरट है एंड देयर इज अ बॉय आउटसाइड द केज. बॉय स्टैंडिंग आउटसाइड द केज. वो अपना हाथ ऐसे पैरट पिंजरे में डाल करके द बॉय इज प्लेइंग विद द पैरट. से बहुत लोग अपने घरों में पैरट रखते हैं एज पेट. पेट एनिमल्स में लोग फिश भी रखते हैं एंड बर्ड्स में पैरट इज द मोस्ट कॉमन बर्ड. पैरट रखते हैं लोग. पैरट कैन इमिटेट ह्यूमन बींग्स ऑल्सो. बहुत टाइम घर में रहते रहते बातचीत सुनते सुनते दे स्टार्ट इमिटेटिंग देम. जो घर में जिन लोगों की बात सुनते हैं उनकी फिर वो नकल करने लग जाते हैं. ओके, सो इन दिस पिक्चर देयर इज अ पैरट. PARROT. पैरट inside the cage. There's a parrot inside the cage and a boy is standing. And a boy is standing outside the cage. Okay? There is a parrot inside the cage and a man is standing outside the cage. Parrot कहाँ है? केज के अंदर है और बॉय कहाँ पर है? केज के बाहर खड़ा है. So what is the inside object? The inside object is parrot. And what is the outside object? The outside object is the boy. Inside object क्या है? Parrot है and outside object is the boy. So we will put a tick on parrot and we will put a cross on boy. ठीक है? There is a parrot inside the cage and a boy is standing outside the cage. We can say it otherwise also. There is a boy standing outside the cage and a parrot inside the cage. दोनों हम बोल सकते हैं, है ना? There is a boy standing outside the cage and a parrot inside the cage. ठीक है? Then fifth picture में, children, can you recognize this? The girl is playing a game. Fifth picture में you can see the girl is playing a game. ये
ये जो रिंग इसने डाल रखी है, इस रिंग को कहते हैं हुपला रिंग। ठीक है, हुपला रिंग को लोग अपने वेस्ट में ऐसे डाल करके उस रिंग के अंदर कंटिन्यूअस घूमते रहते हैं। ठीक है, एंड वो रिंग जो है वो नीचे नहीं गिरनी चाहिए। ठीक है, तो दैट रिक्वायर्स लॉट ऑफ प्रैक्टिस। देखने में लगेगा कि इट इज वेरी इजी, बट इट इज नॉट एट ऑल इजी। रिंग को ऐसे पहन करके वेस्ट पे रहती है, वेस्ट नीचे नहीं जाती है। एंड बॉडी पार्ट्स में हमने वेस्ट पढ़ा था ना, कमर वेस्ट से नीचे नहीं जाती है। एंड कंटिन्यूअस आपको हिलते रहना होता है, अपनी वेस्ट को घुमाते रहना होता है, सो दैट जो रिंग है वो आपकी बॉडी से नीचे ना गिरे। दिस इज नोन एज हुपला रिंग। तो द गर्ल इज मूविंग इनसाइड द हुपला रिंग। आप देख सकते हो कि वो हुपला रिंग के अंदर घूम रही है, एंड द बॉय इज लुकिंग एट हर विद सो मच ऑफ सरप्राइज ऑन हिज फेस। मे बी द बॉय इज वंडरिंग कि हाउ इज शी डूइंग इट, वो कर कैसे रही है इसको। इट इज क्वाइट डिफिकल्ट। ओके, दिस इज नॉट एट ऑल इजी, बहुत डिफिकल्ट होता है। मे बी यू कैन सी दैट लुक ऑफ सरप्राइज इन बॉयज आईज। वो ऐसे करके बिल्कुल देख रहा है कि ये कैसे कर रही है, हाउ इज शी डूइंग इट। ठीक है, तो inside object is the girl and outside object is the boy. There is a girl inside the H-O-O-P-L-A hoopla ring. There is a girl inside the hoopla ring, and a boy is standing outside and looking at her. There is a girl inside the hoopla ring, and a boy is standing outside and looking at her. गर्ल जो है वो कहाँ है, हुपला रिंग के अंदर है, और बॉय कहाँ है, वो बाहर खड़ा है और उसे देख रहा है। सो which is the inside object and which is the outside object? There are two objects, one girl and one boy. So the inside object is the girl. Girl is inside the hoopla ring, and outside object is the boy. Outside object कौन है, boy है। Boy is standing outside and is looking at her. Okay, and sixth one is, you can see a bag. जैसे आपका स्कूल बैग होता है, तो बैग के अंदर there are some books inside the bag and a water bottle outside the bag. Okay, so there are some books inside the bag. There are some books inside the bag and a water bottle outside the bag. So there are two objects. एक तो बुक्स है जो कि बैग के अंदर है। There are two objects, isn't it? एक बैग है, बैग के अंदर कुछ चीजें हैं और बैग के बाहर कुछ चीजें हैं। So there are two objects, one is inside object and one is outside object. So the inside object, what is the inside object? The inside objects are the books. ठीक है, because books are inside the bag, बैग के अंदर है। So books are the inside object and bottle is the outside object, because you can see the bottle is kept outside. So books are inside the bag, so we will put a tick on book and cross at the bottom, because bottle is kept outside. So there are some books inside the bag and a water bottle outside the bag. We can also say it as there is a water bottle outside the bag and some books inside the bag. Okay? So I hope children the concept of inside and outside is clear to you now. कि inside मतलब क्या हुआ और outside मतलब क्या हुआ। ठीक है, inside and outside one cannot be at both the places. कोई भी bird है, animal है, कोई भी human being, कोई भी चीज, अभी books है, अगर वो बैग के अंदर है तो they cannot be outside the bag.
एज ऑफ नाउ अभी तुरंत में अगर हमने उनको बुक्स को बाहर निकाल के रख दिया तो उनकी प्लेस चेंज हो गई. नाउ दे आर आउटसाइड द बैग. ओके, so I hope children the concept of inside and outside is clear to you now, and in case of any doubt, online classes are every day, they are there every day, you can always ask me. Okay, so that is all for the day children. Thank you so much.